نون والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ انجمن حامی مسلمین بھٹکل بسم اللہ ایجوکیشن اور امین کو بہترین تعلیمی اداروں کا ایوارڈ۔ وٹلا بس سے گر کر ایک نوجوان ہلاک۔ کارکلا گھر میں گھس کر عورت پر حملہ۔ بے قصوروں کے بجائے اصل مجرموں کو پکڑے حکومت، جمعیت علماء اتر پردیش کا بیان۔ تریپورہ بی جے پی حامیوں نے بلڈوزر سے توڑا لینن کا مجسمہ، پھر سر سے کھیلا فٹ بال۔ سری سری روی شنکر کے خلاف مقدمہ درج کر کے جیل بھیجا جائے، اویسی کا بیان۔ شری شری روی شنکر کی شام والے بیان پر صفائی، کہا دھمکی دینا مقصد نہیں تھا۔ مولانا حلیم اللہ قاسمی کے بدست جمعیت ایمبولنس کا افتتاح۔ جے للیتا نہیں رہی، کرونا ندھی بھی بیمار، ایم جی آر کی طرح میں چلا سکتا ہوں سرکار، رجنی کانت کا بیان۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی 2 روزہ قیام امن عالم کانفرنس 9 مارچ سے شروع۔ بدھسٹوں اور مسلمانوں کے درمیان پرتشدد جھڑپوں کے بعد سری لنکا میں ایمرجنسی کا اعلان۔ مشرقی غوطہ میں فضائی حملے جاری، مزید 77 افراد ہلاک، حکومت نے 70% ادویہ روک لی۔ کویت میں مزید بنگلہ دیشی ورکروں کی آمد پر پابندی بحال۔ سعودی خواتین نے ایئر ٹریفک کنٹرول کے پیشے کا رخ بھی اختیار کر لیا۔ امریکہ نے ایران کو الٹیمیٹم دے دیا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر بنگلورو سے ہے۔ کرناٹک اردو اکیڈمی کی جانب سے آج اے ڈی اے رنگا مندر بنگلور میں تفویض انعامات کی خوبصورت تقریب سجائی گئی تھی، جس کا افتتاح تلاوت قرآن کریم سے کیا گیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر جناب تنویر سیٹھ، وزیر برائے اولا و ثانوی تعلیم، اقلیتی بہبود و اوقاف موجود تھے۔ انہی کے ہاتھوں سے سال برائے 2014، 15 اور 16 کی اہم قلمی، ادبی اور سماجی شخصیات کو اعزاز اور ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تمام ایوارڈ یافتگان کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ انعامات برائے سال 2014 میں تعلیمی ادارے کے طور پر الامین بنگلور کو چن لیا گیا تھا، اور شاعر کے حساب سے منیر احمد جامی کو، نثر نگار ضیاء جعفر کا نام آیا، بحیثیت صحافی ہدایت اللہ سکندر کو، اور مجموعی خدمات کے طور پر خلیل مامون صاحب کو چن لیا گیا۔ اسی طرح کتابیں برائے سال 2014 میں جو چنیدہ کتابیں آئی ہیں، ان میں سے لرن اردو جو خالد سعید صاحب کی ہیں، یادوں کی مہک نذیر احمد لوہانی ان کی ہے، تار نظر وہاب اندلیب کو، اور اندوختہ اکرام باغ صاحب کو، اور قطرہ قطرہ دریا دیکھوں یاسین راہی صاحب کو اس حساب سے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ جبکہ انعامات برائے سال 2015 میں ادارے کے حساب سے بھٹکل کے مشہور تعلیمی ادارے انجمن حامی مسلمین بھٹکل کو انعام دیا گیا، اور شاعر کے حساب سے خاتون ریحانہ بیگم ریحانہ کو چن لیا گیا، جبکہ نثر نگار کے حساب سے ڈاکٹر ماہر منصور صاحب تھے، اور صحافت کے دنیا سے احمد علی کو لیا گیا۔ مجموعی خدمات کے طور پر ڈاکٹر حافظ امجد حسین کرناٹکی صاحب کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ جبکہ سال 2015 میں کتابوں کے حساب سے دیکھا جائے تو سخن ہائے عروس جو کہ خواجہ فراز بادامی صاحب ہیں، ان کو انعامات سے نوازا گیا، اور سراغ زندگی جو کہ سید احمد یسار صاحب کی ہے، ان کو ایوارڈ سے نوازا گیا، اور ارج ڈاکٹر حلیمہ فردوس کی کتاب کو، اور بساتین السلاطین مولانا محبوب الرحمن عمری مدنی صاحب کو، اور ہوا سے کہو احمد عارف صاحب جو کہ اس تصنیف کے مالک ہیں، ان کو جو ہے اس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ جبکہ انعامات برائے سال 2016 میں تعلیمی ادارے کے طور پر بسم اللہ ایجوکیشن ٹرسٹ بنگلور کو چن لیا گیا، اور شاعر کے حساب سے عز الدین عزیز بیلگامی صاحب کو انعامات سے نوازا گیا۔ نثر میں ڈاکٹر فاطمہ زہرا تھی، تو صحافت کے میدان میں منیر احمد آزاد اور رحمت النساء، اور فنکار کے حساب سے زاہد اللہ خان، اور مجموعی خدمات کے طور پر ڈاکٹر مسعود سراج کو، اور اردو طنز و مزاح کا یوسف لاسانی جو کہ کتابیں ہیں ڈاکٹر بی بی رضا خاتون صاحب کو، ان کو انعامات سے نوازا گیا، اور دوسری کتاب سال 2016 کے لیے دھوپ اور صحرا چنا جو کہ مقبول احمد مقبول کی ہیں۔ آج کی دوسری خبر وٹلا سے ہے۔ یہاں ایک تیز رفتار بس کے پچھلے دروازے پر لٹک کر سفر کر رہے ایک نوجوان کے بس سے گر کر ہلاک ہونے کی واردات پیش آئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق نوجوان کی شناخت
उम्र 18 के हैसियत से कर ली गई। ये बंगारडक्का नामी इलाके से अपने गांव गोली कट्टे जा रहा था कि बस के दरवाजे पर ये लटक कर जा रहा था कि अचानक ब्रेक लगने की वजह से बेकाबू होकर जमीन पर आ रहा, जिसकी वजह से उसके सर पर सख्त चोटें पहुंची हैं। इसको पुत्तूर के एक अस्पताल में दाखिल करने की कोशिश की गई, मगर इस बीच वो दम तोड़ दिया। पुलिस ने ड्राइवर राजेश के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है। अब खबर कारकड़ा से। यहां तन्हा औरत के घर में 3 नामालूम हमलावरों की जानिब से जबरदस्ती घुसकर घर की सारी अशिया तोड़ फोड़ने के अलावा औरत पर हमला करने की वारदात भी पेश आई है। इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता महीने की 25 तारीख को यह वारदात पेश आई थी। कस्बा देहात के तेलार की मुकीम लक्ष्मी कट्टी नामी औरत के घर में घुसकर मुलजिमान में से नागवेणी, परवीन और उनका एक दोस्त ने मिलकर घर की CCTV रिकॉर्डर, हार्ड डिस्क और दीगर अशिया जिनकी मालियत 75,000 बताई गई है, इसको तोड़फोड़ दिया था। इसको देखकर उमेश नामी एक शख्स बच बचाव के लिए बीच में आया तो हमलावरों ने उसको भी हमला करके जख्मी कर दिया। पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। आंखों की तकलीफ और बीनाई से परेशान अहबाब के लिए खुशखबरी। सीधी आई केयर सेंटर के नाम से नए अस्पताल का आगाज बेंगलुरु में हो चुका है। बेहतरीन सहूलियात के साथ, नए सेटअप के साथ अच्छी तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाएगी। डॉक्टर आयशा नाजलीन से इस पते पर राबिता कर सकते हैं। और खबर लखनऊ से। जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश का एक आला सतही वफ्द सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश मौलाना मोहम्मद मतीनुल हक उसामा साहब कासमी की क़ियादत में कासगंज में 26 जनवरी 2018 ईस्वी को तिरंगा यात्रा पर हमले की झूठी अफवाह फैलाकर तिरंगा झंडा लहरा रहे मुसलमानों पर हमला करने, जबकि इस मामले में जिस शख्स को गोली लगी उस पर किसने गोली चलाई, कहां से गोली चली और उसको कैसे गोली लगी, ये बात अब तक साफ नहीं हो सकी है। इसके बावजूद बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को बगैर सबूत के जेलों में बंद करने, प्रतापगढ़ में अकेले औरत को वहशियाना तरीके से मार देने और चंदन और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक बेकसूर तालिब इल्म को कत्ल कर देने जैसे मसाइल को लेकर यूपी के गवर्नर श्री राम नायक से राजभवन लखनऊ में मुलाकात की। वफ्द ने मोहतरम गवर्नर की तवज्जो मबजूल कराते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों में तशद्दुद पर आमादा जत्था और बेकाबू भीड़ ने न जाने कितने लोगों को तशद्दुद का निशाना बना चुका है। अफसोस यह है कि सरेआम कानून को अपने हाथों में लेने और खौफ और दहशत का माहौल पैदा करने वालों के खिलाफ फौरी सख्त एक्शन न लिए जाने की वजह से ऐसे बेलगाम अनासिर के हौसलों को बढ़ावा मिल रहा है। अभी हाल ही में हुए कासगंज फसाद का तस्करा करते हुए मौलाना उसामा, मौलाना हकीमुद्दीन कासमी व अरकान वफ्द ने कहा कि अक़लियती तबके को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और मुतअद्दिद दुकानों व गाड़ियों को जला दिया गया, मसाजिद में आग लगाई गई, लेकिन असल फसादियों को कानूनी गिरफ्त में लेने के बजाय मुतअस्सिर मुस्लिम अक़लियती तबके को ही हरासा और गिरफ्तार किया गया है। यहाँ तक कि इन लोगों को भी जेल में डाल दिया गया जिनका इस फसाद से कोई लेना देना नहीं था। वफ्द ने दलील देते हुए कहा कि कासगंज में जिस शख्स को गोली का निशाना बनाया गया था उसके मारने की जगह और वक्त का तयन किए बगैर इस कत्ल को मुसलमानों के सर थोप दिया गया और उनके साथ वो सब कुछ किया गया गोया वही असली मुजरिम हो। बात का सिलसिला जारी रखते हुए कहा कि इसी तरह प्रतापगढ़ में 3 लोगों ने मिलकर अकेली औरत राबिया खातून को हवस का निशाना बनाया और इंसानी सोच दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए उसका कत्ल भी कर दिया, लेकिन इस बहादुर औरत ने अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए मरते दम तक उनका मुकाबला किया। इस वाक़े पर सरकारी अहलकारों की सर्दमोहरी का तस्करा करते हुए कहा कि ऐसी जांबाज औरत को न कोई मुआवजा दिया गया और न ही उसकी मौत पर कोई बड़ा अहलकार पहुंचा, जबकि मरकजी और सूबाई हुकूमतें बेटियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने और औरतों के हुकूक और उनके ताकतवर बनाने की बात करती है। वफ्द में शरीक मौलाना शब्बीर मज़ाहिरी ने इस औरत के कत्ल की दर्दनाक तस्वीर भी दिखाई, जिसे देखकर गवर्नर ने बड़े दुख का इजहार किया। अब खबर त्रिपुरा से। त्रिपुरा में 25 साला लेफ्ट के इख्तिदार के खात्मे के बाद बीजेपी कारकुनों ने रियासत में हंगामा आराई शुरू कर दी है। जुनूबी त्रिपुरा के बेलवेनिया शहर में बीजेपी हामियों और कारकुनों ने रूसी इनकलाब के हीरो व्लादिमीर लेनिन के मुजस्समे को मुनहदिम कर दिया। लेनिन के मुजस्समे को तोड़ने के लिए बुलडोजर की मदद ली गई। इस दौरान बीजेपी कारकुनान भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे थे। पीर को तकरीबन 3:30 बजे बीजेपी हामियों ने बुलडोजर की मदद से चौराहे पर नस्ब लेनिन के मुजस्समे को मुनहदिम कर दिया। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और बुलडोजर को जब्त कर लिया है। बेलोनिया से सीपीआई की सेक्रेटरी तपस दत्ता ने कहा कि वहां मौजूद बीजेपी के कारकुनों ने मुजस्समा तोड़ने के बाद उसके सर के साथ फुटबॉल खेला। वो न सिर्फ लेफ्ट के दफातर में तोड़फोड़ कर रहे हैं बल्कि कारकुनान के घरों पर भी हमला करके उन्हें निशाना बना रहे हैं। इस वाक़े पर सीपीआईएम ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और अपनी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही साथ पार्टी ने एक फहरिस्त जारी की है जहां इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए हैं। पार्टी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर उनके कारकुनान को डराने का भी इल्जाम लगाया है।
अब खबर हैदराबाद से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में मंदिर की तामीर न होने पर मुल्क में शाम जैसे हालात पैदा होने से मुताल्लिक श्री रविशंकर के मुबैना बयान पर शदीद एतराज किया है। सदर मजलिस ने इस मसले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि श्री रविशंकर तशद्दुद और धमकी का पैगाम दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वो इब्तिदा से कहते आ रहे हैं कि रविशंकर को कोई मौका नहीं मिलना चाहिए, वो गलत बात कह रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। हमारा मानना है कि इस शख्स को दस्तूर पर कोई भरोसा नहीं है और ऐसा शख्स जो हिंदुस्तान के कानून की हुक्मरानी पर यकीन नहीं रखता, ऐसे शख्स के खिलाफ इश्तिआल अंगेजी का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। यहाँ मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि उनका मानना है कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात तक सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद मामले की समाअत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस पर खुली धमकी दी जा रही है। इस तरह की धमकी देने वाले रविशंकर होते कौन है? इनका बयान दस्तूर और सुप्रीम कोर्ट के लिए खतरनाक बात है। खबर नई दिल्ली से। हिंदुस्तान की सूरत हाल शाम जैसे हो जाने वाला बयान देकर तनाज़ात की जद में आए रूहानी गुरु श्री रविशंकर ने सफाई दी है। बरेली में एक प्रोग्राम के दौरान रविशंकर ने कहा कि वो बात धमकी नहीं थी, सिर्फ एहतियात बरतने के नजरिए से ही मैंने ऐसा कहा था। रविशंकर ने कहा कि इनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। रविशंकर यहाँ मुस्लिम उलमा से मिलने के लिए आए थे। बता दें कि अयोध्या मसले को बातचीत से हल करने की कोशिश में लगे रविशंकर ये कहकर तनाज़ात में आ गए थे कि अयोध्या तनाज़ा नहीं सुलझा तो मुल्क शाम में बदल जाएगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में तमाम फरीकों से अपील भी की है कि इस मुल्क के मुस्तकबिल को ऐसे चंद लोग जो जद्दोजहद को ही अपना वजूद समझते हैं उनके हवाले ना करें। रविशंकर का मानना है कि मुसलमानों को हम आहंगी का मुजाहरा करते हुए अयोध्या पर अपने दावे को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अयोध्या मुसलमानों के अकीदे की जगह नहीं है। उनके मुताबिक अगर अदालत मंदिर के हक में फैसला सुनाती है तो फिर मुसलमान शिकस्त खुर्दा महसूस करेंगे, वो अदलिया पर अपना यकीन खो सकते हैं। ऐसे हालत में वो इंतहा पसंदी की तरफ बढ़ सकते हैं। हम अमन चाहते हैं। इस्लाम में मुतनाज़ा जगह पर इबादत करने की इजाजत नहीं है। भगवान राम कहीं और पैदा नहीं हो सकते। अब खबर मुंबई से। शहरी मुंबई के शिमाली मगरबी जोन में वाक़ जमीयत उलमा मोगरापाड़ा शिमाली मगरबी जोन हल्क़े अंधेरी ईस्ट के ज़ेर एहतिमाम एक अज़ीमुशान जलसे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी माशरे का इनेकाद और मुकामी यूनिट की तरफ से फराहम की गई एम्बुलेंस का इफ्तिताह बरोज़ इतवार 4 मार्च 2018 जमीयत उलमा मोगरापाड़ा शिमाली मगरब हल्का अंधेरी ईस्ट के ज़ेर एहतिमाम मुनाकिद किया गया था। मुकर्रर खुसूसी के तौर पर हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने शिरकत फरमाई और हाज़रीन जलसे से मौजूदा हालत हाजिरा के तनाजुर में पुरमग़ज़ खिताब भी फरमाया। मौलाना ने अपने खिताब में मुसलमानों के बाहमी इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने और आपस में मुत्तहिद होने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर मुफ्ती हफीजुल्लाह कासमी नाजिम तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने भी खिताब फरमाया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मकामी यूनिट मोगरापाड़ा अंधेरी ईस्ट मुंबई की तरफ से फराहम की गई एम्बुलेंस का इफ्तिताह हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब के बदस्त अमल में आया। अब खबर चेन्नई से। तमिलनाडु में अपनी सियासी पार्टी का ऐलान कर चुके साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने इरादे अभी से जता दिए हैं। पीर को रजनीकांत एमजीआर एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में तलबा से मुखातब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि सियासत की डगर बहुत मुश्किल है, लेकिन वो एक अच्छी हुकूमत की क़यादत कर सकते हैं। रजनीकांत ने कहा, जयललिता नहीं रही, करुणानिधि बीमार हैं, एमजीआर की तरह मैं एक अच्छी हुकूमत चला सकता हूं। पीर को चेन्नई में तमिल मकबूल लीडर एमजीआर की तस्वीर का इंकिशाफ हो जाने के बाद रजनीकांत तलबा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, सियासत का सफर मुश्किलों और जद्दोजहद से भरा हुआ है, लेकिन मैं आपको वैसी हुकूमत इंतजामिया दे सकता हूं जैसा कि एमजीआर के वक्त में था। अब खबर नई दिल्ली से। मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद समाजी मुल्की और आलमी सतह पर अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल और मुल्क को मिल्लत और इंसानियत के हसास और सुलगते हुए मसाइल का हल तलाश करने के लिए यहाँ रामलीला ग्राउंड में आइंदा 9 और 10 मार्च को एक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनाकिद कर रही है। जमईयत के सदर मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफी ने यहाँ मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि क़याम में अमन आलम और तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत के मौजू पर जमईयत की इस 34वें ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में मुल्क व बैरून मुल्क के मशाहिर उलमा इकराम और दानिशवरान निज दीनी व समाजी अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। अब खबर कोलंबो से। श्रीलंका ने फिरकावाराना तशद्दुद को फैलने से रोकने के लिए मुल्क में 10 दिनों की इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। एक सरकारी तर्जुमान ने बताया कि श्रीलंका के वस्ती जिला केनेडी में मुसलमानों और बुद्धिस्टों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पों के एक रोज बाद मुल्क में कानून और इंतजाम की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए इमरजेंसी का ऐलान किया है।
श्रीलंका में गुज़िश्ता एक साल से दोनों फिरकों के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है, जहां शिद्दत पसंद बुद्धिस्ट तंजीमों की तरफ से मुसलमानों पर आम लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाने और बुद्धिस्टों के आसार कदीमा के मकामात पर तोड़फोड़ करने का इल्जाम लगाया है। बास कौम परस्त बुद्धिस्टों ने मुल्क में रोहिंग्या मुस्लिम पनाहगुज़ीनों की मौजूदगी के खिलाफ एहतिजाज भी किया है। सरकारी तर्जुमान दयाश्री जयशेखरा ने राइटर को बताया है कि काबीना की खुसूसी मीटिंग में 10 दिनों की इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला किया गया, जिसका मकसद फिरकावाराना फसादात की आंच मुल्क की दीगर रियासतों में फैलने से रोकना है। सोशल मीडिया पर शाये पैगामात की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया जराए से तशद्दुद भड़काने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला किया गया है। इससे कबल हुकूमत ने फौजी दस्ते और पुलिस को बड़ी तादाद में जिला कैनेडी में कल ही तैनात कर दिया था, जहां एक मुसलमान की दुकान को बुद्धिस्टों ने नजर आतिश कर दिया। उसके बाद पुरतशद्दुद झड़पें शुरू हो गई, जिसको रोकने के लिए फौरी तौर पर कर्फ्यू लगा दिया गया था। अब खबर दिमश्क से। मशरिक की गौता में फिजाई हमलों और बमबारी के नतीजे में मजीद 77 अफराद के मारे जाने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। आलमी इदारे रेड क्रॉस का 46 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला मुतासरा इलाके में पहुंचा है। इदारे का कहना है कि शामी हुकूमत ने 70% दवाएं रोक ली हैं। रेड क्रॉस का 46 ट्रकों पर मुश्तमिल काफिला मुतासरा इलाके में पहुंचा है। इदारे के मुताबिक इन ट्रकों में तकरीबन 27,000 के करीब अफराद के लिए खुराक और दीगर इमदादी सामान शामिल हैं। इलाके में 4 लाख अफराद फंसे हुए हैं। वाज़ेह रहे कि गौते पर बमबारी से अब तक 700 अफराद मारे गए हैं। अब खबर कुवैत से। कुवैत की वजारत दाखिला ने बांग्लादेशी वर्करों की भर्ती पर पाबंदी फिर बहाल कर दी है और अब मजीद बांग्लादेशी तारिकीन वतन को इस खलीजी रियासत में काम के लिए भर्ती नहीं किया जा सकेगा। कुवैत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले वर्कर इस वक्त बासख्त कवायद के तहत रियासत में काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। इनमें एक शर्त यह है कि वो किसी ऐसे आजिर के यहाँ मुलाजिमत इख्तियार कर सकते हैं जिसका अपना मिल्कियती मकान हो। अखबार ने लिखा है कि वजारत दाखिला ने फैसला गुज़िश्ता हफ्ते एक मुताले के बाद किया है। इससे ये बात सामने आई थी कि कुवैत में काम करने वाले बांग्लादेशी तारिकीन वतन की तादाद 2 लाख से मुतजाविज हो चुकी है। इसके बाद अंडर सेक्रेटरी बराए शहरियत और पासपोर्ट्स उमूर शेख माजिन अल जर्राह ने बांग्लादेशी वर्करों की कुवैत में आमद पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के शोबे में काम करने के लिए खवातीन के वास्ते पहला तरबियती प्रोग्राम इतवार के रोज से शुरू हो चुका है। ये प्रोग्राम सऊदी एयर नेविगेशन सर्विसेज यानी SANS कंपनी ने सऊदी सिविल एविएशन अकेडमी के ताउन से मुतारिफ कराया है। इस 1 साला डिप्लोमा प्रोग्राम में 12 सऊदी लड़कियों को दाखिला दिया गया। प्रोग्राम की कामयाब तकमील पर इन लड़कियों को मंजूर शुदा डिप्लोमा सर्टिफिकेट और कंपनी में मुलाजिमत पेश की जाएगी। दूसरी जानिब SANS कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रैयान तराबिजूनी ने वाजे किया है कि कंपनी ने सऊदी विजन 2030 प्रोग्राम के तनाजुर में सऊदी खवातीन की सपोर्ट के लिए इस मैदान में नौजवान खवातीन की मुलाजिमत को तरजीह दी है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी नायब सदर माइक पेंस का कहना है कि अगर ईरान के साथ सन 2015 में तय पाने वाले जौहरी मुआहदे की खामियों को आइंदा के महीनों में दूर न किया गया तो अमेरिका इस मुआहदे से दस्तबरदार हो जाएगा। पेंस ने अमेरिका में इसराइल नवाज तहरीकों में से नुमाया तरीन AIPAC 2018 से खिताब में कहा कि खतरनाक इश्तिआल अंगेजी को अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तेहादियों की जानिब से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर ईरान के साथ तय पाने वाले जौहरी मुआहदे में तरामीम न की गई तो अमेरिका इस मुआहदे से किनारा कशी इख्तियार कर लेगा। उनका कहना था कि अमेरिका ईरान के दीगर इलाकों में सख्तगीर मौक़िफ़ के खिलाफ जद्दोजहद वाक़ई करेगा। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर